So we are here for the introduction of the client-side scripting by our web resource on the Google. We will understand from Google resources what is the client-side scripting. We have our notes, but still we try to explore as much as possible. What separates a web page from an application is rich two-way communication between the user and the site. What is it? User and the site. Two-way communication in the sense कि आप रन टाइम ही अपने रिजल्ट को पा जाते हैं कि जिस रिजल्ट को प्रोसेस करना चाहते हैं. Okay. Scott Lubin delves into the client side. Scott Lubin is the author of this. What is the key technology to provide the interactivity and niches of the web applications? See, in the previous article, he has given introduction about Cascade style sheet, which we have already learned from the W3 school. Now, let's move for the interactive web application. What is the interactive web application? Anyways, if a web page is having a two-way communication between the user and the site, it is a interactive web application. An application accepts data from the user and dynamically tailored its output based on this input. Very important line. जब यूजर एक्सेप्ट करता है यूजर के डेटा को, जब कोई भी एप्लीकेशन या वेब पेज जिसको वेब एप्लीकेशन भी कह रहे हैं, यूजर उसमें डेटा इनपुट करता है और डायनामिकली तुरंत वो टेलर करके जो भी एप्लीकेशन जिस भी प्रोग्राम को जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया था उसको टेलर मच करके वो आउटपुट दे देता है तुरंत ही. इसको कहते हैं जी इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन है ये. HTML itself does not offer a few built-in elements features that enables web developer to implement interactive functionality in a web page. HTML अपने आप में बहुत सारा elements नहीं provide करता है. HTML itself does not offer a built-in elements and features. वेब डेवलपर्स की इम्प्लीमेंट इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी बिल्ट इन फीचर्स जो इंटरैक्टिव बनाता है. तो ये जो फीचर्स हैं इनको आप नई प्रोग्रामिंग डायमेंशंस में देखेंगे. एक प्रोग्रामिंग डायमेंशन आपने देखा CSS जो HTML के पेज के प्रेजेंटेशन को एनहांस कर रहा है. तो ये जो नया प्रोग्रामिंग डायमेंशंस जो भी आप देखेंगे जैसे जावास्क्रिप्ट जो है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा. While HTML itself does not offer a few built-in elements and features that enables web developers to implement interactive functionality in a web page. These features revolve around the form submission. Form submission में ये थोड़ा सा HTML इनको हेल्प करता था इंटरैक्टिविटी में, बट उतना हेल्प नहीं करता था कि वेब एप्लीकेशन बनाए जा सके. Now, on the other spectrum, from the HTML standard textbook and radio button, Java and ActiveX both offers ways to embed small full-featured programs in the web browser, providing a richer user experience. Richer user experience is a very important term. Unfortunately, this power comes to expense relatively complex programming and heavy requirement of the memory and processing power on the client. ये कह रहे हैं कि भाई पहले अगर आपको ये पूरी प्रोग्रामिंग चाहिए तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, उसकी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर भी क्लाइंट पे इंक्रीज की जाती है. अब आप समझिए इस बात को कि पहले का जो मोबाइल फोन था उसका जो मेमोरी स्ट्रक्चर था वो मेमोरी स्ट्रक्चर हुआ करता था 250 MB 512 MB. ठीक है, अभी मेमोरी स्ट्रक्चर है 3 GB 4 GB. क्यों? क्योंकि हैवी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं मेमोरी की, प्रोसेसिंग पावर क्लाइंट साइड पे बहुत ज्यादा बढ़ी है. आप इतने ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वेब ऐप्स हैं एक्चुअली, ठीक है, वो वेब ऐप्स क्या करते हैं, मेमोरी खाते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग है. प्रोसेसिंग पावर अगर आपकी अच्छी नहीं होती है तो देर में आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा है. तो क्लाइंट साइड scripts occupy a middle ground between the two extremes, offer a web application with more functionality than pure HTML, but with less complexity and the lower processing load than the Java and ActiveX controller. अब एक तरीका पहले क्या था, मतलब जो हमारा Java और ActiveX है, ActiveX basically a .NET application, और ये जो है ये भी प्रोवाइड किए थे कि हम वेब डायमेंशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग लोड देते थे.
Here we used Java. We use Java. Here we use Java. Client-side scripts occupy a middle ground where these two extremes offers. Here we use Java, offer a web application with a more functionality than pure HTML. We don't use Java or ActiveX because it is a heavy program. We just go for the middle ground. Scripting is the middle ground between two. You know, HTML की तरफ plainness भी नहीं रहेगा और Java की तरफ complexity भी नहीं रहेगा. वो क्या है ये हमको समझना पड़ेगा. Alternative objects on the clients. अब इसमें देखिए बहुत important part है. An alternative to client-side scripting model process also supports the capability to embed a reference to pre-compiled software components in the web page. जो आप plugins कहते हैं वो pre-compiled होते हैं और आप plugin करते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं. इसी का ये technical specification है. The two primary technologies for the Java and Java ActiveX. In both cases, the browser downloads the component to the client computer where the underlying operating system, or in the case of Java ActiveX, a runtime environment called Java Virtual Machine executes the code. तो ये Java में होता है कि आप Java को कोड को डाउनलोड करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इन केस ऑफ Java ActiveX और वो एग्जीक्यूट करके आपको कोड देते हैं. अच्छा, benefits of this approach include the capability to implement richer functionality than the offered by client-side scripting. This is because the components are developed with full-blown programming languages, and the environment in which the components run offers much richer resource than the web browser alone offers to the client-side scripting. वो ये कह रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ा फायदा क्या है कि programming language or environment in which the component run offers much richer resource than the web browser alone offers to the client-side scripts. Much richer resource. This is very important to understand कि हमारा client-side scripting alone बहुत ही अच्छा resource देता है, बहुत ही richer resource देता है to understand. तो client-side scripting हमें richer बनाता है हमारे client-side पे available web browser को. स्क्रिप्टिंग क्या करता है जो हमारे क्लाइंट साइड पे अवेलेबल वेब ब्राउज़र है उसको रिचर बनाता है. रिचर इन द सेंस कि वो बहुत सारे वेब एप्स को रन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग. एडिशनल बेनिफिट क्या है? कंपाइल्ड नेचर ऑफ कंपोनेंट्स मींस दैट द सोर्स कोड इज नेवर डाउनलोडेड टू द क्लाइंट. वो क्लाइंट पे डाउनलोड नहीं होता है. वेब ब्राउज़र वो सर्वर के साथ इंटरेक्ट करके प्री कंपाइल्ड नोटेशन होके बनाते हैं और जस्ट इन कंपाइल्ड कोड्स होते हैं और वो रन कर जाते हैं. जस्ट इन कंपाइल्ड कोर्स के बारे में हम समझेंगे, लेकिन अभी बस इस यूनिट 3 की एक स्टार्टिंग है तो उसको समझने के लिए इन सब पॉइंट्स को आप समझना शुरू कीजिए कि क्या है ये. नाउ एन एडिशनल बेनिफिट इज दैट द कंपाइल्ड नेचर See, full-blown programming languages and the environment is with the components that offers much richer resource than the web browser alone offers to the client-side scripts. ये कह रहे हैं कि अगर आप पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो बहुत सारी वेब ब्राउजर अलोन जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के साथ ऐड होके इसको यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज्यादा प्रोवाइड कर पाती हैं. लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात क्या है? यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि दोनों के बीच में हमने क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी निकाली कि दोनों का फायदा मुझे मिल जाए. और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जब हम एम्बेड करते हैं प्रोग्राम को प्री कंपाइल्ड जस्ट इन कंपाइल्ड प्रोग्राम्स को तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी को ऑफर करते हैं. क्या ऑफर करते हैं? क्रॉस प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी को. तो सेम कंपोनेंट ऑफन वर्क्स क्वाइट डिफरेंटली इन द सेम ब्रांड और वर्जन ऑफ द ब्राउजर. वो डिपेंड करता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर अलग है, ब्राउजर की कॉन्फ़िगरेशन अलग है और इसके साथ ना तो परफॉर्मेंस इश्यूज भी आती थी. और जब आप एक वर्जन से दूसरे वर्जन में ट्रांसफर करते थे तो आप प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होता था. जब आप क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी करते थे कि भाई एक ब्राउजर में आपने अपने हिसाब से प्रोग्राम को बनाया, मान लीजिए ब्राउजर 1.0 में उसने अपना कोड जो है उसने अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया तो वर्जन के लॉन्चिंग से जो पुराना कोड होता था वो नए वाले वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होता था. ठीक है, तो जब कंपैटिबल नहीं होता था तो उस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई कैसे हम उस आगे बढ़ाएं. ठीक है, अब तो स्क्रिप्ट्स कैसे बनाते थे वेब एप्लीकेशन में? स्क्रिप्टिंग डिफर्स फुल स्केल एप्लीकेशन प्रोग्राम
in the full blown program run from the operating system manipulate data system resource to carry out their processing. पहली बात तो ये स्क्रिप्टिंग इन सब चीजों से अलग क्या करता है. Script design embed a container application where they manipulate data and application resource to carry out processes. क्या करते हैं भाई, एक कंटेनर बनाते हैं, उसमें मैनिपुलेट करते हैं डेटा को और अपना जो भी रिसोर्स अवेलेबल है क्लाइंट साइड पे लेते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं. Now, while being pre-liquidated from directly accessing the underlying system, while they will not discuss the detail in this article, web application often contain scripts run on the web server का server side scripts as well as client side scripts. अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम फुल ब्लोन एप्लीकेशंस नहीं बना रहे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाउनलोडेड है, तो हमको कहीं ना कहीं से इंटरएक्टिविटी मेंटेन करना है. तो उस इंटरएक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हमको सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ती है. तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट की अलग प्रोग्रामिंग डोमेन है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की अलग प्रोग्रामिंग डोमेन. जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है वो हमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो वेब एप्लीकेशन में होता है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसको स्क्रिप्टिंग इंजन कहते हैं जो वेब ब्राउजर का एक पार्ट है उस पे रन करता है. ठीक है. The scripting engine parse and runs the script code allowed it to manipulate resources to the browser and the web document. तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट स्क्रिप्ट्स कैसे चलते हैं जी. वो वेब एप्लीकेशन आर रन बाय द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. The scripting engine that is the part of the web browser. The scripting engine parse and run the script code, allowing it to the manipulate resources of the browser and the web document. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, आगे हम समझेंगे और समझ में आएगा. जो हम पढ़ा जो हमारा टॉपिक है वो HTML HTML DOM में काम करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन जावास्क्रिप्ट, जो हमारा जावास्क्रिप्ट .NET का टॉपिक है. ठीक है. अब देखिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का रोल क्या है. पहली बात जो आई थी कि इंटरएक्टिविटी बढ़ाता है वेब एप्लीकेशन का, बेटर परफॉर्मेंस देता है. देन यूजिंग अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टू इंप्लीमेंट सेम फंक्शनैलिटी. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये बेटर फंक्शनैलिटी देता है देन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बिकॉज़ द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डज नॉट incur the delay of the round trips between the client and server, making the web application more responsive. तो दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो गई, इंटरएक्टिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस. Now this is a crucial for a dynamic user experience in web application. As an extreme example, imagine that a developer wants to limit input to a textbook to only numbers. Each time the user hits a key, the character entered must be examined and thrown away. If it's not a number or cursor movement, this key. Imagine the delay of application had to wait for a round trip between a client and server. Redraw this page with the each stroke. हर बार अगर आप क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे तो हर की स्ट्रोक पे पूरा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का मॉडल फॉलो होगा, जिसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत आएगा और बहुत सारा रिसोर्स लगेगा और कभी भी वेब सर्वर खाली नहीं होगा और उसको हम बहुत लिमिट तरीके से यूज कर पाएंगे. और हम जब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे एनहांसमेंट कर देते हैं तो बहुत सारे कॉन्करेंट 100,000 यूजर्स को भी हम सर्वर पे मैनेज कर लेते हैं. ठीक है. Capabilities and limitations of scripting. Client-side scripting executed the web browser under the strict enforcement rules. Protect the user system from the malicious code. Client-side can control most browser behavior, manipulate most HTML documents. तो इसी के लिए हमने क्या किया, इसका एक हमारी बॉडी है ECM में. ECM में हमको स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करती है कि हम फ्यूचर में अगर कोई स्क्रिप्टिंग कोड लाइक जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे. तो ये एक हल्का फुल्का एग्जांपल था कि आप कैसे काम करते हैं. अब ये समझिए, एक साइट लोड होती है ब्राउजर पे, तो क्लाइंट साइड रन ऑन द ब्राउजर तो प्रोसेस द रिक्वेस्ट विदाउट कॉल बैक टू सर्वर. अगर ये कॉल बैक करती है तो इतना ज्यादा प्रोसेस कॉल करता है. व्हेन अ कॉल आप ये हर बार कॉल बैक नहीं करती, लेकिन जब कॉल करना पड़ता है तो क्या होता है भाई, वो रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट के थ्रू, बैकएंड में सर्वर्स हैं, डेटाबेसेस हैं, तो जावास्क्रिप्ट या एजेक्स के थ्रू वो रिक्वेस्ट सेंड होती है, बैकएंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट में उसको प्रोसेस करता है और उसको सेंड करता है, फिर सर्वर साइड स्क्रिप्ट प्रोसेस करके अपडेट करके उसको जो अपडेट करने के बाद उसको फिर रिस्पॉन्स करता है. तो ये रिस्पॉन्स अब जब और रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड बना देते हैं तो ये जो पूरा चक्कर है, ये चक्कर आपस में बच जाता है. और जो भी आप वेबसाइट देखते हैं वो मिक्स ऑफ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होती है. ये समझने वाला पार्ट है कि जो भी आप आजकल वेब एप्लीकेशंस देखते हैं वेब ब्राउजर्स पे, तो वो इट इज अ मिक्स ऑफ द HTML, CSS एंड द जावास्क्रिप्ट. We understand HTML, we understand CSS. Now it's time for the JavaScript. Okay.
they are saying there are many, modern languages like Bash, which works in the Linux interface. Node.js works on the JavaScript. जितना भी है ना, LinkedIn, Microsoft, Netflix, PayPal, Yahoo, ये सब Node.js पे काम करता है, जो हमारा मेन फोकस है. Ruby प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, Python है, Perl है, बहुत सारी चीजें हैं. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग व सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये पुराना मॉडल है थोड़ा. यहाँ पे क्या होता है जी, ब्राउजर में आप स्क्रिप्टिंग लगाते हैं, हेल्पर एप्लीकेशन की तरह काम करता है, स्क्रिप्ट करता है. अगर उसको जरूरत पड़ती है सर्वर साइड जाने में, तो सर्वर एपीआई प्रोग्राम के रिक्वेस्ट को लेता है, फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पेजेस बनाता है, सीजीआई के थ्रू बैकएंड के डेटाबेस में उसको प्रोड्यूस करता है. ये काम होते हैं. ये कंपैरिजन चार्ट्स हैं, कभी कभी हमको समझने में काम आ जाते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर कोर्स. ओके, this is all about first topic of your course, introduction to web, introduction to client server client side computing. Okay, this is first topic of the fourth unit, that is introduction to client server topic. First topic, this is first topic. We have just discussed the first topic of your fourth unit of subject web designing KIT 401. Okay.